So today we have started finally. So yeah, quickly I will share my screen, and also I hope like mostly कई लोगों ने they have started with the software, they tried it, and I hope you're feeling a bit comfortable with it. So eventually जितना practice करोगे उतना आपका eventually easy लगने लगेगा सॉफ्टवेयर. जैसे मेरे साथ यही हुआ था जब क्योंकि हम जब तक यूआई किट में थे वी आर जस्ट बेसिकली more have fear about it basically because if you haven't tried it so far obviously नई चीज है आपको देख के डर लगेगा या कि भाई सॉफ्टवेयर का कोड completely काफी अलग साउंड करता है क्योंकि हम लोग यूआई किट वाले लोग हैं तो आई एम टॉकिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ दोज हु एक्चुअली वर्किंग सिंस लास्ट फ्यू इयर्स और more than 5-10 years in यूआई किट only right like me. तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर का जो अप्रोच है या फिर सॉफ्टवेयर के जो फंडामेंटल्स है थोड़े से डिफरेंट है एज कम्पेयर टू यूआई किट बट कई चीजों में सिमिलर भी है कई चीज पे ऑफ द सिमिलैरिटी आल्सो विल कम टू दैट पार्ट बट या द पॉइंट इज की it's not that actually tough, it's actually easy in some way or other way. Maybe you will find UI kit is more easier or some way you will find sometimes you will find key swiftware is easier but yeah eventually you will be get comfortable. तो बस इतना ही कि you haven't spent the time with software, that's why you are not comfortable. Once you start spending time, once you start doing some hands-on, go through some article topics or even attending sessions, you will eventually getting comfortable with it. So yeah, in short, even in the first session, I have like addressed this thing कि सच में software is very easy and Apple actually introduced software to make development more easier, more cleaner, more faster. Okay, first thing, which is straightforward Apple. That's why they are recommending, and also it is a multi-platform kind of thing. So once you build the app, basically it will support your watch, TV, OS, and all that thing. मतलब all Apple ecosystem basically. So that also the concern Apple have, and in UIK it's not that visible. So that's why they come up with the new UI framework. And again they address some things or they make things easier. जो कि UI kit में अभी मैं example दूंगा आपको आगे. जिसके लिए यूआई किट में यू नीड टू इम्प्लीमेंट लॉट ऑफ कोड और थोड़ा सा वर्क अराउंड जुगाड़ टाइप चीजें यू नीड टू figure out. But in SwiftUI, straightforward, they introduce few things which really very easy and smooth and straightforward as compared to if you go in UI kit, you need to do like a lot of code or even you need to do something which is not recommended, like not a clean code experience you will get. So okay, so again, but हाँ UI kit is not deprecated at all, and even though अभी आप देखोगे last 2-3 years के WWDC में still UI kit getting new updates, तो एप्पल उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया अभी तक, अभी भी नहीं लग रहा है कि आगे कुछ सालों तक नहीं होगा, सच टाइम लगेगा. बट और अगेन द थिंग इज एज फार एज पर माय अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर अभी भी मार्केट में काफी काफी यूज होता है. लाइक सो मेनी कंपनीज आर देयर हु एक्चुअली यूजिंग UI kit also in their existing projects. So sorry, I'm talking about UI kit. Yeah, UI kit अभी भी कई कंपनीज यूज कर रही हैं, लेगेसी प्रोजेक्ट्स में भी कर रही हैं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में भी कर रही हैं. ऑल्सो दे आर बिल्डिंग द न्यू फीचर्स इन यूआई किट क्योंकि अभी भी कंपनीज थोड़ा सॉफ्टवेयर के साथ कंफर्टेबल नहीं है या रिलाई नहीं कर रहे हैं या फिर उनको लगता है वो एक माइग्रेशन का एक लर्निंग कर्व होगा. दे आर प्रीटी मच कंफर्टेबल विद यूआई किट, एंड यूआई किट में आप कुछ भी कर सकते हो, राइट. एक कॉन्फिडेंस वो भी है जो पुराने डेवलपर्स हैं या जो सीनियर डेवलपर्स हैं. सॉफ्टवेयर में भी ऑलमोस्ट सारी चीजें फिजिबल है. कुछ कुछ रेयर केसेस हैं, एज केसेस हैं जो कि आप वहाँ पे यूआई किट की हेल्प ले सकते हो. इसलिए एप्पल ने एक ब्रिज दे हैव प्रोवाइडेड यू. यू कैन यूज बोथ द कोड पैरेलली. वो भी हम उस चीज पे आएंगे बाद में. यू कैन एक्सप्लोर ऑन योर ओन एज वेल. तो क्यों एप्पल ने ये सब दिया है? क्योंकि जैसे अगेन गो इन द हिस्ट्री, जब ऑब्जेक्टिव सी के बाद स्विफ्ट आई थी, आज भी वो ब्रिज गैप अवेलेबल है, राइट. आप दोनों का इंटर ऑपरेटिबिलिटी है दोनों में, राइट. वैसे ही यूआई किट और सॉफ्टवेयर में है, दोनों कोड एट ए टाइम एग्जिस्ट कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि पूरा प्रोजेक्ट ही यूआई किट में होगा इधर या सॉफ्टवेयर में होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. बोथ फ्रेमवर्क्स कैन एग्जिस्ट इन द प्रोजेक्ट, इन योर सेम प्रोजेक्ट एट अ टाइम, राइट. सो तो हाँ, जब भी अगर आपको लगे कि ओके मुझे इस चीज के लिए यूआई किट में करना, यू कैन डू. बट हाँ, अगर वो सॉफ्टवेयर में इजीली हो सकता है इम्प्लीमेंट, इट इज इफ इट इज इजियर, मोर क्लीनर, मोर स्मूथ एक्सपीरियंस, देन प्लीज गो अहेड विद सॉफ्टवेयर, राइट. इवेंचुअली अगर आपका पूरा बजट सॉफ्टवेयर में ही है तो आप कहीं सारी जगह पे तो सॉफ्टवेयर ही यूज करो. यह केस में कुछ
some edge cases you will think about it, उस पे भी हम आएंगे किन किन केसेस में नॉर्मली लोग यूआई किट प्रेफर कर रहे हैं या करना पड़ रहा है, लाइक बिकॉज दे डोंट हैव एनी ऑप्शन सो फार। सो तो इवेंचुअली सॉफ्टवेयर आल्सो गेटिंग स्टेबलाइज। ओके, अगर आप देखोगे अराउंड 6 years हो गए सॉफ्टवेयर को, तो 6 years में काफी अच्छी प्रोग्रेस ली है। वंस दे स्टार्टेड तब तो काफी अनस्टेबल था, इवेंचुअली आप अब काफी अपडेट्स आ गए हैं और एप्पल उस पर एक्टिवली काम कर रहा है। सो नाउ थिंग्स प्रीटी स्टेबल एंड काफी सारी कंपनीज अब सॉफ्टवेयर में काम कर रही हैं। सो या, तो हाँ, जो लोग फर्स्ट टाइम आए, आई क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो माई सेल्फ कुशल झालानी, आई एम currently working in Abu Dhabi from last 2 years, and I have total experience around 9 years in iOS. And I'm from Rajasthan, but eventually from Pune, also moved to Pune, and here I'm like working since last 2 years. And I'm also the founder of Intel Labs and iOS Labs. So I recently started iOS Labs for this whole iOS community and batch and all that stuff. And previously also in 2021, I used to take these batches under Intel Labs. So that is again tech communities and my own startup. And also I'm working on some open source product based stuff, which eventually in the coming weeks I will share those details. So you can also involve or contribute if you want to, like, or if you're interested. So yeah. So that's it about me. And again, yeah, I found like people are looking for the job. I got so many messages over the LinkedIn or WhatsApp. So agar aap log, if you are looking opportunities, let me know. You can share your profile. Even I have your profile. That's why वो form में सारी details I used to ask. तो I would highly recommend जिन लोगों ने अभी तक form नहीं भरा है, please go ahead and fill that form. And other thing is privately or separately you can mention that thing कि I'm actively looking and I'm finding these challenges while looking for a job. और अगर आप यूई स्पेसिफिक देख रहे हैं तो reach out to me, okay, over LinkedIn or WhatsApp, you have that. So openings आती रहती हैं दुबई में, अबू धाबी में. So yeah, I'm currently in Abu Dhabi. So yeah. Do you Cool. get? I have Yes. one question. So, do you get like remote job options, like Uh, opportunities and all? remote में it's like not that common, but हाँ, अगर something I found remote options also, I will let you know for the Okay, same. thank you. Thanks. Cool. So जिन लोगों से already I connected one on one, I know the context, but हाँ, कुछ लोगों से मेरी अभी तक कभी one on one discussion नहीं हुआ है, so ये उन्हीं के लिए मैं address कर रहा था. So yeah. Okay, then let's quickly start. So today we are going to focus on state management, the basic state management. Let me open the notes doc I have right now. Just a minute. I'm sharing my screen. State management. Yeah. So let me share my tab. Okay, let me know once my screen visible. It's just a second. Yep. Is it visible? My screen visible? Yes, it is. So thanks. तो आई होप अभी तक आप लोगों ने ये चीजें देख ली होंगी, बट जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, दे हैव नो आइडिया अबाउट कि भाई हाउ टू मैनेज स्टेट इन सॉफ्ट यूआई। तो फर्स्ट वील स्टार्ट विद अगेन यूआई किट कंटेक्स्ट। तो यूआई किट में क्या करते हैं हम लोग? यूआई किट में वंस यू अगेन, आप नॉर्मली व्यू कंट्रोलर होता है हमारा, राइट? उसमें हम वेरिएबल प्रॉपर्टीज बना लेते हैं एंड मैनुअली वी कैन मैनेज द स्टेट्स। और वहां पे वो डिक्लेरेटिव नहीं है, राइट? वो इम्पेरेटिव है काइंड ऑफ। तो वहां पे चीजें अलग तरीके से मैनेज हो रही है, उसका लाइफ साइकिल अलग है, बट स्विफ्ट यूआई का अलग है। और वहां पे all views are class and reference types in UIKit. That's a major fundamental difference between UIKit and Swift UI. Okay. Swift UI में all views are struct type, जो कि आप देखोगे उनका बेसिक कोड, जैसे ही आप कोई ऐप स्टार्ट करते हो एक्सकोड में, तो बेसिक टेम्पलेट में वो बॉडी और वो व्यू स्ट्रक्ट टाइप का होता है आपका। और वही सारे स्विफ्ट UI में है कि सारे व्यू स्ट्रक्ट ही होंगे काइंड ऑफ। तो यहाँ पे फंडामेंटल डिफरेंस आ जाता है आपका। तो अब यू नो कि स्ट्रक्ट में आप नॉर्मली वैल्यूज म्यूटेटिंग वो सब चेंज नहीं कर सकते हो, राइट? यू नो दैट थिंग। करनी है तो फिर म्यूटेटिंग फंक्शन लिखो और वैसे करो चीजें। तो उसी के लिए एप्पल ने बोला कि भाई कोई बात नहीं, हम एक wrapper देते हैं आपको, आप टेंशन ना लो, विल प्रोवाइड यू wrappers थ्रू दैट you can change the values and you can maintain state and you can, मतलब
उस स्टेट पे बेसिकली यू विल अपडेट योर यूआईस, मतलब वो लोग टेक केयर कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ स्टेट वेरिएबल का थोड़ा ध्यान रख रहे हैं, और एप्पल मेक श्योर करेगा कि हर स्टेट के लिए जब भी दिस बेसिकली दिस प्रॉपर्टी और दिस वैल्यू गेट्स चेंज, तो वो बॉडी जो होगी या जो व्यू होगा वो रिकम्प्यूट करेगा अपने आप को, रिकम्प्यूट कह लो, री रेंडर कर लो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उस पर भी हम टेक्निकलिटीज पे आएंगे बाद में। अभी के लिए इतना समझो कि मेरा कोई स्क्रीन है, उसमें कुछ डेटा मैं दिखा रहा हूँ, उसके अंदर अगर कोई वैल्यू है और वो अगर हम चेंज कर रहे हैं, तो जैसी वैल्यू चेंज होगी, चाहे कहीं से भी बाहर से किसी टैब पे समथिंग लाइक दैट, एनी इनपुट आउटपुट समथिंग, तो वो व्यू फिर से अपडेट हो जाएगा और अपडेटेड वैल्यूज वहां पे दिखेंगी, ठीक है। तो वो व्यू अपडेटेड दिखेगा, मतलब बेस्ड ऑन द करंट वैल्यू और द अपडेटेड वन, ठीक है। सो दैट्स द ब्रीफ अबाउट दिस। तो एप्पल प्रोवाइड यू दिस प्रॉपर्टी रैपर, बेसिकली स्टेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे आपका क्या होता है, जैसे सिंपल सिंटैक्स देखोगे तो नथिंग बट इज नॉर्मल वेरिएबल, उसी में एट द स्टेट लगा दिया, प्राइवेट इज रिकमेंडेड टू डिक्लेयर, वाई, क्योंकि ये एक ही क्लास या व्यू के कंटेक्स्ट में ही होता है स्टेट एट्रीब्यूट, आप इसको एक्चुअली कोई दूसरा क्लास या दूसरा कोई व्यू इसको एज सच एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो डजंट मेक सेंस टू मेक और डिक्लेयर एज अ पब्लिक और डिफॉल्ट और लाइक दैट, राइट, और इंटरनल, डजंट मेक सेंस। इसलिए रिकमेंडेड है, जैसे आपको पता होगा एप्पल में या जो भी और भी आई थिंक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ऐसा है कि इट्स रिकमेंडेड, जब तक जरूरत नहीं है अननेसेसरी पब्लिक या डिफॉल्ट या इंटरनल डिक्लेयर मत करो। सो बेसिकली जितना स्कोप कम है उतना ही डिक्लेयर करो, जब स्कोप आपका सच में बढ़ रहा है, एक्चुअली यू नीड हायर public access modifiers basically, only then declare it like public or internal or default. तो हाँ, यहाँ पे एक्चुअली पता है कि इट्स गोइंग टू बी यूज इंटरनली ओनली, देन व्हाई टू डिक्लेयर, इवन आप कर सकते हो, एरर नहीं देगा, बट हाँ रिकमेंडेड इज प्राइवेट, तो इसलिए आपको जहाँ भी आप कोड सैंपल्स देखोगे या ऑफिशियल डॉक्स में देखोगे तो नॉर्मली प्राइवेट डिफाइंड होगा ये स्टेट वाला वेरिएबल। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया, अगर आप देखोगे काउंटर को डिफाइन किया और इसी काउंटर को हम यूज कर रहे होंगे अपने व्यू के अंदर, फाइंड आउट। और स्टेट क्या क्या है सीन कि ये वैल्यू टाइप से तो इम्यूटेबल होता है बाय डिफॉल्ट, उसी के लिए जैसे मैंने बोला आप डेटा चेंज करना चाहते हो तो एप्पल ने आपको एक स्टेट एट्रीब्यूट दे दिया है, एक रैपर दिया है, और उसके थ्रू आप चीजें कर सकते हो, ठीक है। इंटरनली एप्पल मैनेज कर रहा है, वो कैसे कर रहा है उस पर भी बाद में आएंगे हम लोग, बट पहले ये समझो कि स्विफ्ट यूआई का ये बेसिक चीजें कैसे वर्क कर रही है, फिर उसकी डिटेलिंग पे जाएंगे इन कमिंग सेशंस कि इंटरनली कैसी चीजें वर्क कर रही होंगी, और उसमें अगर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उस पर भी आएंगे फिर, ठीक है। तो स्टेट इट्स लाइक लोकल मेंटेन स्टेट है आपकी, आपके व्यू के ऊपर ही, राइट, और उसमें अगर आप कुछ चेंज करते हो तो वो अपडेट कर लेता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। और इसमें अब एक बाइंडिंग वाला भी कॉन्सेप्ट है, उस पर हम आते हैं। तो बाइंडिंग के लिए हम लोग नॉर्मली डॉलर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, और बाइंडिंग एक्चुअली एक पेरेंट और चाइल्ड व्यू के कंटेक्स्ट में होती है, ठीक है। वो पेरेंट चाइल्ड का व्यू आपको बता दो, इट्स नॉट लाइक योर इनहेरिटेंस, इट्स लाइक योर व्यू हायरार्की वाला पेरेंट चाइल्ड है ये, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि टर्म्स में पेरेंट चाइल्ड लिखा रहता है, तो इवन फर्स्ट टाइम मैंने जब पढ़ा था मैं भी कंफ्यूज हो गया था, पर एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट इनहेरिटेंस वाला पब्लिक चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड नहीं है, ये व्यू हायरार्की वाला पेरेंट चाइल्ड है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आई थिंक आई हैव एग्जांपल, लेट मी जस्ट सी दिस वन। तो यहाँ पे जो चाइल्ड व्यूज कह रहा है, अगेन दिस इज कंटेक्स्ट ऑफ व्यू हायरार्की, ओके। तो पेरेंट व्यू जैसे आप मान लो आपका एक मेन स्क्रीन है, उसके अंदर आप कोई और व्यू यूज कर रहे हो, उसके अंदर एक और व्यू होगा, राइट, जो कि सब व्यू कह सकते हैं हम लोग, सब व्यू कहते थे, राइट, यूआई किट में अगर आपको याद होगा, तो एक सब व्यू बेसिकली, ठीक है। तो सब व्यू में आप कोई वैल्यू, अगेन आप चाहते हो कि जो मेरी बाहर की जो वैल्यू है, जो पेरेंट व्यू है, या मेरा जो आउटर व्यू कह लो, या जो मेन व्यू है, उस मेन व्यू से मुझे कुछ डेटा अंदर पास करना है, या उस वैल्यू के बेसिस पे मुझे वो अपडेट करना है, अंदर वाला जो मेरा सब व्यू होगा, या उसको हम चाइल्ड व्यू कह रहे हैं, या इनर व्यू कह लो, जो भी कह लो, सेम एक ही बात है। तो उसके लिए हम लोग बाइंडिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे एक पेरेंट व्यू, उसमें इज ऑन एक प्रॉपर्टी ली है, उसके बॉडी में टॉगल व्यू डाला हुआ, टॉगल व्यू यहाँ पे इस पेरेंट व्यू का चाइल्ड व्यू हो गया, राइट, काइंड ऑफ। और ये कस्टम व्यू है, ठीक है, ये कोई एप्पल की क्लास नहीं है, यहाँ पे देखो डिफाइन किया हुआ है। तो टॉगल व्यू में बेसिकली बाइंडिंग एट्रीब्यूट लगाकर ये मैं नहीं लगाऊंगा तो स्टेट मेंटेन नहीं होगी, मतलब किसी ने अगर यहाँ से चेंज किया तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और किसी ने इसका चेंज किया मतलब इनर वाले का, तो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इन दोनों को रिफ्लेक्ट करने के लिए, सिंक में करने के लिए बाइंडिंग वाला कॉन्सेप्ट दिया एप्पल ने। बोले भाई अगर आपको पेरेंट चाइल्ड मतलब आउटर और इनर व्यू, या फिर वही मेन व्यू सब व्यू में एक सिंक्रोनाइज करनी चीजें, आप बेस्ड ऑन योर स्टेट और वैल्यूज, उसके लिए बाइंडिंग यूज करो, मतलब स्टेट एट्रीब्यूट को बाइंडिंग से मैप कर दो।
तो उसके लिए आप देखोगे यहाँ पे क्या किया, यहाँ तो स्टेट एट्रीब्यूट ये बाहर का पेरेंट का हमेशा स्टेट एट्रीब्यूट रहेगा, अंदर वाले को बाइंडिंग से डिफाइन करना है आपको। तो बाइंडिंग मेक श्योर करता है कि फिर जब आप इसको डिक्लेयर करते हो ना, यहाँ पे ये व्यू इनिशियलाइज हो रहा है, जब भी व्यू को इनिशियलाइज करते हो तो बाइंडिंग एट्रीब्यूट पास करना पड़ता है। अभी देखना, अभी आप जब कोड में करते हो तो यहाँ पे वो जो होता है ना कि हेल्प, एक हेल्प आती है, वो हिंट्स आते हैं जब हम कोड लिखते हैं, तो वो बोलेगा कि बाइंडिंग प्रोटोकॉल से ही मैप्ड होना चाहिए, जो कि नथिंग बट कोई ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए जो कि बाइंडिंग को कंफर्म कर रहा हो, काइंड ऑफ। ठीक है, और उसको पास करने का एक तरीका होता है कि डॉलर साइन हम पास करते हैं, तभी वो बाइंडिंग एट्रीब्यूट कंसीडर करेगा। एक तरह का सिंटैक्स है बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो बाइंडिंग के केस में आप हमेशा डॉलर यूज करोगे, और नहीं है बाइंडिंग, मान लो यहाँ पे बाइंडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो मैं डॉलर हटा दूंगा। बेसिकली आई कैन रिमूव दिस एंड आई कैन रिमूव दिस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो फाइन, पर मुझे चाहिए बाइंडिंग तो मुझे ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद आप जब भी देख रहे होंगे, आप यहाँ पे क्या कोड लिखा है, टॉगल में आपका दिखा रहा है बस की वैल्यू क्या है, इवन ऐसे चेंज नहीं कर रहा वो, पर हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक बटन डाल देंगे, उसके ऊपर टॉगल लगा देंगे, ट्रू को फॉल्स कर देंगे, फॉल्स को ट्रू कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, उसके एग्जाम्पल पे आएंगे हम लोग। तो यहाँ तक बट चीजें क्लियर है थोड़ी सी, स्टेट एट्रीब्यूट, बाइंडिंग एट्रीब्यूट, एग्जाम्पल में जाके देखेंगे अभी। तो लेट मी गो टू एक्सकोड ऑल्सो। इसी एग्जाम्पल को मैं एक बार क्विकली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ in the export. Just a second. Actually, I have one एक क्लास बना लेते हैं, चलो। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग इस पैरेंट व्यू को मैं पास कर दूंगा, यहाँ पे मैं इंपोर्ट लगा देता हूँ। पैरेंट व्यू मस्ट बी पास इन कंटेंट व्यू। ठीक है, अभी हम लोग एक बार प्रोजेक्ट रन कर, we can still see the oh sorry, yeah, let me share my whole screen. मैं forgot, thanks for reminding. तो अभी मैं एक्सपोर्ट पे मूव हो गया, पर मुझे ध्यान नहीं रखा मैंने वो किया एंटायर स्क्रीन। यस, ठीक है, आई होप स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है, तो अभी एक्सपोर्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, वही कोड ब्लॉक में देख रहे थे, कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दिया, और अभी इसको हम रन करते हैं। पर अभी के लिए मैं ये बाइंडिंग वाला कॉन्सेप्ट हटा रहा हूँ। ठीक है, लेट मी रिमूव दिस एंड अब डॉलर की जरूरत नहीं है। ठीक है, इवन डॉलर लगाओगे तो एरर दे देगा वो, पर अभी बिल्ड करते हैं हम लोग, यहाँ भी डॉलर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी बाइंडिंग मैंने रिमूव कर दिया है, स्टेट लगा सकते हैं यहाँ पे आप। ओके, ये इज ऑन वे से नहीं लेगा एक्चुअली, ये ओके, दिस इज फाइन। रिमूव बाइंडिंग है क्या, एक सेकंड, चलो एक मिनट बाइंडिंग के साथ रन करते हैं हम लोग। मुझे लग रहा है वो कैशे का सीन हो रहा है। ठीक है, तो बाइंडिंग के साथ पहले रन, यस। हाँ, डॉलर एक्चुअली मैं नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं बाइंडिंग रिमूव कर रहा था, तो आई डोंट वांट दैट बाइंडिंग। ठीक है, तो अभी रन किया तो ऑब्वियसली ये जस्ट टॉगल भी आपको दिख रहा होगा सिमुलेटर पर। तो बाइंडिंग से अभी मैं काम करता हूँ यहाँ पे, लेट मी इंट्रोड्यूस बटन। ठीक है, तो अभी एक बटन हमने डाला, और उस बटन की क्लिक पे मैं एक्चुअली टॉगल कर रहा हूँ। अभी टॉगल टॉगल से कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो टॉगल है आपको याद होगा अपना स्विफ्ट का फंक्शन है। ठीक है, इसका स्विफ्ट से वो लेना देना नहीं है। तो ये बूलियंस को टॉगल कर देता है, राइट, ट्रू फॉल्स। तो अगर वो इनिशियली फॉल्स है तो ट्रू कर देगा टैब पे, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। अभी रन करते हैं एक बार।
ठीक है, ये रहा बटन अपना, क्लिक किया, देखो यहीं से चीजें हो रही है मैनेज, समझ रहे हो आप? तो ये है बाइंडिंग का एक्चुअल रोल। तो मैं कर रहा हूँ चाइल्ड व्यू के अंदर आके ये चीज, ये चाइल्ड व्यू हुआ काइंड ऑफ, या इनर व्यू हुआ इसका, ये पेरेंट व्यू, ये आउटर व्यू आपका मेन। मैं यहाँ पे कमेंट भी डाल देता हूँ, तो चाइल्ड पेरेंट से कंफ्यूज मत होना, इट्स नथिंग बट योर आउटर व्यू या फिर मेन व्यू, दोनों एक ही बात है। मेन व्यू भी कह सकते हो आप इसको। और ये जो है आपका, दिस इज नथिंग बट योर इनर व्यू या फिर आपका सब व्यू। मैं यूआई किट की भाषा में भी आपको बता रहा हूँ कि उस कंटेक्स्ट में हम इसको ऐसा बुलाते थे। तो पेरेंट और चाइल्ड की बॉन्डिंग बनाने के लिए या इनर आउटर व्यू को बाइंड करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट एप्पल ने दिया। और अगर हम बाइंडिंग का यूज नहीं करेंगे तो ये स्टेट मेंटेन नहीं होगी या रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसी के लिए बाइंडिंग वाला चीज है कि यहाँ पे आपने एक वैल्यू बनाई, उसको इसके साथ बाइंड कर दिया, इट्स नथिंग बट आपने उसको टाई कर दिया है, ठीक है। और जब भी अब ये चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, और अगर ये चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगा, काइंड ऑफ, मतलब समझ लो, रिफ्लेक्ट हो जाएगा बेसिकली, इट्स लाइक दैट। तो यहाँ तक क्लियर है प्लीज? ओके, स्क्रीन गलती से स्टॉप हो गई है फिर से, हाँ। लेट मी अगेन गो टू द स्क्रीन। ठीक है, कूल। या तो मैं फिर से डॉक पे जा रहे हैं हम लोग एक बार क्विकली। तो यहाँ पे बाइंडिंग को लेके थोड़ी सी चीजें हैं कि बाइंडिंग भी एक प्रॉपर्टी प्रॉपर है, बेसिकली टू वे कनेक्शन बिल्ड कर देता है, ठीक है। तो एक पेरेंट चाइल्ड का टू वे कनेक्शन हो जाता है, अगर चाइल्ड ने बदला तो पेरेंट पे रिफ्लेक्ट हो गया, पेरेंट ने बदला तो चाइल्ड पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, उस तरीके से। और यूज क्यों करना है? क्योंकि ये मॉडिफाई रीड वही बेसिकली कनेक्शन बनाने के लिए सिंक सिंक रहे, बेसिकली ये मेन पॉइंट है। कीप्स डेटा इन सिंक बिटवीन व्यूज, और व्यूज में भी सेम व्यू हायरार्की में पेरेंट इनर चाइल्ड वाला कंटेक्स्ट में, ठीक है, दूसरा किसी को नहीं करेगा वो, आपका पेरेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो होगी ये चीजें, ये भी ध्यान रखो। तो ये देखो कुछ बेसिक सिंटैक्स डाला और कुछ नहीं है, स्टेट और बाइंडिंग का। और व्हेन टू यूज वही है कि जब मॉडिफाई कर रहे हो उस तरीके से डेटा स्टेट मेंटेन करनी है, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे वही बेसिक एग्जांपल डाल दिया है सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली कोड, ओके, मेरे को ये वाला कोड का एग्जांपल आपको देना चाहिए था, मैंने ऊपर वाला ले लिया। तो मैं क्विकली इसका भी दूंगा आपको, ये स्टेपर का एग्जांपल दे सकते हो, बहुत फेमस है, हर जगह डालते हैं लोग ये एग्जांपल। लेट्स रन दिस एग्जांपल इंस्टेड ऑफ दिस, हम लोग इसको भी रन करेंगे। और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, लेट मी कमेंट दिस, ठीक है। तो स्टेपर आ गया अपना, इसको रन करते हैं अपन एक बार। ठीक है, लेट्स सी। तो ये देखो, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये काउंटर बढ़ता जा रहा है, राइट? Screen is not visible, Kushal. ओप, सॉरी सॉरी, फिर से वही दिक्कत हो गई। एक काम करता हूँ, मैं एंटायर स्क्रीन ही रखता हूँ तो बेटर रहेगा, टैब पे नहीं जाएंगे, क्योंकि बार बार एक्सपोर्ट पे स्विच करना पड़ रहा है। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर हो रहा है, कूल। तो अगेन एक्सपोर्ट में मैंने वो कॉपी पेस्ट किया एग्जांपल, ये स्टेपर वाला, और यहाँ पे मैं आपको सिमुलेटर पे दिखा दूं। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, अगर मैं काउंटर बढ़ा रहा हूँ कम कर रहा हूँ तो ये आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है आप देखोगे, एक स्टेपर व्यू, चाइल्ड व्यू है, उसके अंदर एक स्टेपर है जिसमें ये वैल्यू मैप्ड हुई हुई है 1 to 10, इन्होंने डाल के रखा। मान लो 10 के आगे जाते हैं तो जाने नहीं देगा वो आपको, और 0 के या 1 के नीचे नहीं आ पाओगे, ठीक है, डिसेबल हो जा रहा है। तो एक एक रेंज देके रखी बेसिकली। ये जो स्टेपर है ये एप्पल का कंपोनेंट है, ठीक है, अपना नहीं है ये। तो ये आप अंदर जाके चेक कर सकते हो, सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है बेसिकली, ठीक है। तो उस पर नहीं जाएंगे हम, तो वो आप खुद से देख सकते हो, नथिंग बट एक स्टेपर इस तरह का एक व्यू होता है। तो इसमें जब भी वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, तो वो एक्चुअली वैल्यू मैप करी हुई है और वो अपने को दिख रही है थ्रू द दिस लेबल बेसिकली। तो ये आपको जो दिख रहा है क्वांटिटी, और इसके बाद ये जो वैल्यू है यहाँ से दिख रहा है, राइट। ये एक तरीके से लेबल हुआ और इसके साथ ये वैल्यू मैप कर दी, और वैल्यू मैप करी है विद एक्चुअल जो स्टेपर के अंदर जो हम काउंटर चला रहे हैं उसकी वैल्यू के साथ ये मैप किया हुआ है, ठीक है। अब ये अगेन चाइल्ड व्यू है, तो जैसे मैं इसको छेड़ूंगा तो ये पेरेंट पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इनिशियल क्वांटिटी 1 रखी, मान लो मैं 5 रख देता हूँ, तो लेट्स सी 5 से इनिशिएट होना चाहिए ये, स्टार्ट विद 5, लेट्स सी। ये देखो स्टार्ट विद 5 हो गया ये। अब इसको बढ़ाएंगे तो 6 7 8, और कम करूंगा तो 1 तक जाएगा, और इसकी रेंज में बढ़ा सकता हूँ। इसको मैं 10 कर देता हूँ और इसको 30 कर देता हूँ, और अब मैं स्टार्ट करूंगा 15 से, समथिंग लाइक दैट, ठीक है।
तो अभी आप देखोगे 15 से स्टार्ट हो रहा है और अब रेंज अपन ने बदल दी, 15 से स्टार्ट हो रहा है 15, और उसको कम करके 10 से नीचे नहीं जाएगा वो, और बढ़ा के 30 तक मैक्स जाएगा, राइट। इसके आगे डिसेबल हो गया, ठीक है। तो आई होप दिस क्लियर्स। बेसिक चीजें बेसिक पे ही रहेंगे, अभी एडवांस चीजों पे आगे जाएंगे हम लोग धीरे धीरे। तो ठीक है, यहाँ तक कूल, ओके कूल। तो अभी के लिए ये बाइंडिंग स्टेट इतना ही है, इसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं वो यहाँ पे मेंशन है। नॉर्मली लोग ये डॉलर लगाना भूल जाते हैं, अभी अपन भी नहीं लगा रहे थे, पर मैं अगेन बाइंडिंग हटा के ट्राई कर रहा था, एक्स कोड में कभी दिक्कत दे देता, ठीक है। अब अगर हाँ आप ये ध्यान रखो, बेसिकली बाइंडिंग और स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो तो डॉलर वाला चीज, और बाइंडिंग को स्टेट के साथ ही यूज करते हैं, ठीक है। तो वो भी वो बात इसने बोली है। और उसके अलावा ये व्यू हायरार्की वाला जो मैं कह रहा था वो वाली बात है। तो व्यू हायरार्की आपका सेम होना चाहिए, राइट। तो ट्राइंग टू यूज व्यू हायरार्की एग्जांपल स्टैंड अलोन, वो आपको दूसरे उस ऑब्जेक्ट से फिर यूज करना पड़ेगा, उस पर हम आएंगे बाद में। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, सेम व्यू हायरार्की में तो इजीली चीजें मैप हो जाएंगी आपकी, और पेरेंट चाइल्ड वाला हायरार्की या जो वही मेन व्यू और सब व्यू वाला चीज, ठीक है। तो कूल, अभी हम लोग नेक्स्ट इस पे जाएंगे, विच इज नथिंग बट योर लिस्ट बेसिकली। लेट मी ओपन लिस्ट टॉक, ठीक है। आई होप दिख रहा है लिस्ट। तो लिस्ट इज नथिंग बट आपका टेबल व्यू है यहाँ का बेसिकली, काइंड ऑफ। यस मानसी, यू हैव एनी क्वेश्चन? हाँ, बस मुझे एक और चीज ऐड करनी थी कि ये स्टेट बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट टू वे है। तो हमने जैसे हाँ, ये क्वांटिटी को हमने टॉगल व्यू में पास किया, तो वापस या हम उसके पेरेंट व्यू में क्वांटिटी को कोई टेक्स्ट में विजिबल करेंगे तो हमको अपडेटेड वैल्यू ही मिलेगी, बिकॉज इट्स अ टू वे यस, बाइंडिंग कॉन्सेप्ट। टू वे, यस 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 यस, राइट। इवन मैं नोट्स में बोले, तो ये टू वे कनेक्शन ही है। और वही है जो मैं बोला था, चाइल्ड से अपडेट किया तो पेरेंट को अपडेटेड मिलेगा, पेरेंट ने अपडेट कर दिया तो चाइल्ड को अपडेटेड मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमने इनिशियल वैल्यू जब चेंज करी, वो 5 और 10 जो किया था, तो वो एक्चुअली पेरेंट के यहाँ पे अपडेट किया हमने इनिशियल वैल्यू स्टेट जो है उसका, और वो चाइल्ड को अपडेटेड मिला। और अगर चाइल्ड से छेड़ूंगा तो पेरेंट को अपडेटेड मिल रहा है। तो लाइक दैट, ठीक है, कूल, थैंक्स। तो ये स्क्रीन डिसेबल क्यों हो जाता है, ये क्या हो रहा है सीन? एक सेकंड, फिर से शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लिस्ट पे देख रहे हैं बेसिक, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है अभी के लिए। इतना समझो, अभी तक आप टेबल व्यू यूज करते हुए आए हो, ठीक है, बहुत बार किया होगा, बचपन से कर रहे हैं हम लोग, काइंड ऑफ, राइट। तो वैसा ही है लिस्ट, एक एक चीज दी है, इसको आप टेबल व्यू से रिलेट कर सकते हो। इस पे बारे में हमने पहले डिस्कस भी किया था, पर आज हम उस टॉपिक को ले रहे हैं। तो इसमें आप बेसिकली सेल वाला कॉन्सेप्ट से ही मैं आपको रिलेट करूंगा। तो कुछ नहीं, इसके अंदर भी आइटम्स हैं बेसिकली। लिस्ट है, लिस्ट किसकी होती है? आइटम्स की लिस्ट होती है, राइट। अब उसमें आप चाहे कुछ भी डाल दो, वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ जाएगा। अभी इसके कोड एग्जांपल भी हम उस पर जाएंगे। तो इसमें मोटा मोटा क्या चीज है कि इसमें कोई भी एरे कलेक्शन आप पास कर सकते हो, ठीक है, उस डेटा को पार्ट्स करके दिखाएगा। और इसमें आप फॉर लूप वॉर लूप घुमाओ, स्टैटिक भी रख सकते हो, डायनेमिक भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो काइंड ऑफ यहाँ पे ये एरे है लिस्ट का, प्रोडक्ट्स का एरे पास कर दिया, और उसके अंदर ये जो है ये बेसिकली नथिंग बट योर जो हम सेल्फ और रो में करते थे टेबल व्यू के, वो है ये चीज काइंड ऑफ। या कलेक्शन व्यू के सेल्फ और आइटम, सॉरी, ये आइटम फॉर रो, वो वाला जो फंक्शन था वो ये है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी है वो बेसिकली उसका अंदर का वो बना रहा है। ये कोड को मैं अगेन एक क्लास बना के सेपरेटली लिख दूंगा क्लीन कोड के एक्सपीरियंस में। पर इतना समझने का ट्राई करो, ये जो इतना कोड है जिसमें एक वी स्टैक है, वी स्टैक में हम आएंगे, इट्स नथिंग बट योर वर्टिकल स्टैक, जो हम स्टैक पे यूज करते थे वही वाला चीज है। उसमें कुछ नहीं, दो लेबल डाले हुए बेसिकली, ठीक है। एक टेक्स्ट मतलब लेबल लेबल है, दूसरा भी एक लेबल है, उसको फॉन्ट दे दिया कुछ, उसको कुछ फॉन्ट वॉन्ट दे के रखा है, बस इतना किया है, ठीक है। तो टेबल व्यू, अगेन टेबल व्यू वाला चीज, तो एक सेल समझो आप, उस सेल में दो लेबल्स हैं, उसमें मैं कुछ वैल्यू दिखा रहा हूँ, और उसको मैंने कुछ फॉन्ट वगैरह दिया है, थोड़ा फॉर्मेटिंग किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से है। ऐसे यहाँ पे आप देखोगे जो फर्स्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं, स्टैटिक वैल्यू रख दी। स्टैटिक वैल्यू जैसे इसका एग्जांपल में देते हैं लोग, सेटिंग्स वाला जो अपना स्क्रीन होता है, आईफोन के जो सेटिंग्स में आप जाते हो, वो एक्चुअली स्टैटिक होती है, ठीक है। वहां पे कोई ऐसे डायनेमिक नहीं होता, वो स्टैटिक होता है। तो उसके लिए एग्जांपल में लोग स्टैटिक लिस्ट कहते हैं उसको। और डायनेमिक ऐसा हो गया जैसे अपना नॉर्मल डे टू डे में हम जो टेबल व्यू में करते थे, एपीआई से कॉल आके जितना डेटा आया वो डेटा वहां फेंक दिया, एंड देन इट्स गेट स्टार्ट लोडिंग, एंड वो उतनी रोज वहां पे दिख रही है, राइट, काइंड ऑफ लाइक दैट, ठीक है। लिस्ट भी कैसे वर्क करता है इंटरनल, बाद में आएंगे उस चीज पे, बट अभी के लिए यू कैन सी इट्स सिमिलर टू टेबल व्यू। और बेसिक आपका आइटम है, टेक्स्ट है, और
वो हम लोग अंदर का जो सेल है, सेल फॉर रो आपका, वो ही चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें हेडर्स भी डाल सकते हो, सेक्शन हेडर्स है, जैसे कि हम टेबल व्यू में भी करते थे, राइट। ये हमने बहुत बार किया है। हेडर व्यू सेक्शन को हम कॉन्फ़िगर करते थे, हेडर फुटर करते थे, हाइड उसकी करते थे, वो सारा चीज यहाँ पे हो रही है बेसिकली। ये जो आपका सेक्शन हेडर है, ये यहाँ से मैनेज हो रही है चीज। तो पॉइंट जैसे एप्पल ने बोला कि अगेन क्लीन कोड एक्सपीरियंस देना है, नंबर ऑफ लाइन कम कर दी। आप यूआई किट में हम लोग डेलीगेट इंप्लीमेंट करते थे, फिर उसके फंक्शन 2-3 वो जो कंपलसरी वाले वो लिखते थे हम, नंबर ऑफ रो, सेल्फ और रो, ठीक है। फिर सेक्शन के लिए अलग से आप लिखोगे। अब ये इतने से कोड में काम हो गया, ठीक है। यूआई किट में यही चीज करने के लिए आपको आई थिंक 6-7 या 10 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, और वो उतना क्लीन एक्सपीरियंस भी नहीं है। वो अलग बात है कि हम लोग अब यूज टू हो गए, और अभी जो इंसान, अभी कई ऐसे फ्रेशर्स हैं जो एक्चुअली दे स्टार्टेड देयर जर्नी विद स्विफ्ट यूआई एंड दे हैवंट एक्सप्लोर्ड यूआई किट, उनका अपोजिट है, ठीक है चीज। तो उन लोग जब वो यूआई किट का कोड देखते तो बोलेंगे अरे ये भाई क्या है ये, समझ रहे हो। क्योंकि उनके लिए यूआई किट इज मोर टफ और डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू स्विफ्ट यूआई, एंड दे आर मोर कंफर्टेबल विद स्विफ्ट यूआई। और हम लोग का ऐसा है कि हम लोग यूआई किट के साथ इतने कंफर्टेबल हो गए, इसलिए हमें वो इजी लगता है। और ये थोड़ा सा अभी एकदम से देखा है, बट जैसे ही आप थोड़ा सा इसके साथ हैंड्स ऑन कर लोगे और खुद से प्रिंट करके देखो, चीजें चेंज करो, वैल्यू रिफ्लेक्ट होंगी, तो आराम से यू विल मतलब नॉर्मल हो जाएगा ये चीज। और अभी हम एक प्रोजेक्ट भी कमिंग वीक में भी आर प्लानिंग टू स्टार्ट। तो एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूँ थोड़े टॉपिक्स हो जाए, सो दैट वी कैन एक्चुअली स्टार्ट द प्रोजेक्ट, जिसमें आपका सॉफ्टवेयर यूज होगा, डिजाइन आर्किटेक्चर पैटर्न यूज होंगे। अभी हम इसी सॉफ्टवेयर की सीरीज में ही डिजाइन आर्किटेक्चर पैटर्न भी लेने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा अगेन, क्योंकि यूआई बनाना होगा बेसिकली, उसके साथ एपीआई कॉलिंग करनी होगी, तो बेसिक यूआई कॉलिंग, एपीआई कॉलिंग, असिंक अवेट, ये सब हम थोड़ा कर लें, सो दैट कि हम लोग फिर डिजाइन बेटा आर्किटेक्चर पैटर्न पे आए, समझ रहे हो, तो मेक्स मोर सेंस। इसलिए फिर उसमें आपका डिजाइन बेटा आर्किटेक्चर पैटर्न होगा, सॉलिड प्रिंसिपल्स होंगे, ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन होगा, इस तरह की चीजें। तो कुल मिला के हाँ, यहाँ पे डायनेमिक लिस्ट वगैरह है, यहीं पे आप स्टेट वाला भी चीज यूज कर सकते हो। स्टेट इज नथिंग बट आपका लोकली व्यू में मेंटेन हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे कोड में आपने कुछ फ्रूट्स का एक एरे बना रखा है, ये अभी हमारे कोड एग्जांपल में भी एक्सकोड में मैं जा रहा हूँ, बट अभी के लिए पहले यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक एरे है और इसको आप डिलीट कर सकते हो। ऑन डिलीट करके एक फंक्शन होता है, जैसे कि हमारा हम लोग वहां पे भी करते थे यूआई किट में, याद है आपको, ठीक है। उसमें आपका वो जो साइड में स्वाइप एक्शंस देते थे हम, याद कर पा रहे हो, वो स्वाइप एक्शंस ही है बेसिकली, ठीक है। वहां पे डिलीट और बाकी एक्स्ट्रा फंक्शन, फेवरेट वगैरह और या पिन वगैरह, जैसे व्हाट्सएप में भी आता है, आप स्वाइप करते 2-3 फंक्शन देता है वो, राइट, पिन करने के लिए और डिलीट चैट और ये सब लाइक। तो उस तरीके से ये स्क्रीन, ओके, मुझे लग रहा है कुछ गेस्चर्स चालू हुए हैं, उस वजह से ये सेटिंग में देखना पड़ेगा मुझे, पर ठीक है। फिर से आई थिंक मैंने गूगल मीट की सेटिंग्स में गलती से गेस्चर्स ऑन किए, उस गेस्चर्स की बेसिस पे वो स्क्रीन शेयरिंग कर रहा है। कूल, ठीक है। स्क्रीन वापस जैसे स्क्रीन मेरा अगर गलती से डिसेबल हो जाएगी, मुझे पता नहीं चलेगा, तो मेक श्योर कि आप लोगों में से कोई मुझे कन्वे करे। अभी फिर से हम आते हैं, दिख रहा है ना अभी, ठीक है, कूल, हाँ थैंक्स। तो पॉइंट ये कि हाँ, स्टेट हम जो थे, आपका एक एरे मेंटेन हो रहा है, और जैसे ही मैं इस एरे को अपडेट करता जाऊंगा, तो जैसे हमने एक चीज देखी, जब भी आपका जो स्टेट एट्रीब्यूट है वो कभी भी डेटा अपडेट होगा, उसकी वैल्यू चेंज होगी तो रिकम्प्यूट करेगा, और ये आपका अपडेट हो जाएगा, ये लिस्ट बेसिकली अपडेट हो जाएगा। लिस्ट क्यों अपडेट होगा, ये बॉडी के अंदर है, मतलब बेसिकली उस व्यू का, ये अपना व्यू है पूरा, ये पूरा व्यू है, राइट, इस व्यू की ये बॉडी है, ये बॉडी बेसिकली रिकम्प्यूट होती है जब भी डेटा चेंज होता है, और कंप्यूट होके अगेन वो उसी पार्ट को अपडेट करता है जो एक्चुअली अपडेट करने का कंपोनेंट है। सबको नहीं करता, उस पर भी हम बाद में आएंगे कैसे करता है, क्या करता है, ये इंटरनल फंक्शन सॉफ्टवेयर का कैसा है, हाउ इट वर्क्स एंड बिहेव। पर अभी के लिए इतना समझो, अगर मैंने ये अरे चेंज किया तो ये पूरा अपडेट हो जाएगा व्यू, मतलब फिर से वो लिस्ट रीइटरेट होके फिर से अपडेट कर देंगे चीजों को, ठीक है। बेसिकली टेबल व्यू में हम रीलोड डेटा करते थे, वो यहाँ पे अपने आप हो रहा है। तो इसमें ऐसे ही बोला जाता है, और ये एक्चुअली हो भी रहा है, कि यूआई किट में हमको खुद से ये चीजें मैनेज करनी पड़ती थी, कि भाई डेटा चेंज हुआ तो रीलोड डेटा करो, करना पड़ता था, राइट। अब आरएक्स स्विफ्ट की मैं अगेन बात नहीं कर रहा हूँ अभी, आरएक्स स्विफ्ट के या आरएक्स स्विफ्ट कंबाइन, इस तरह की चीजें आप यूज नहीं कर रहे हो, तो हम लोग काइंड ऑफ ये चीजें करते थे बिना आरएक्स स्विफ्ट के, या जिन लोगों ने आरएक्स स्विफ्ट कभी नहीं देखा उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो नॉर्मली हम लोग डे टू डे में रीलोड डेटा, बहुत फेमस है, हम डिस्पैच और मीन असिंग, जैसे डेटा चेंज हुआ फिर वो रीलोड डेटा कर रहे हैं, ठीक है। फिर सेल्फर रो के लिए कोड लिख रहे हो, सेक्शन के लिए लिख रहे हो, वो सारा काम जो आपका इतने से में हो जा रहा है, रीलोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्विफ्ट यूआई में एप्पल प्रोवाइडेड यू
अगेन वरापर की स्टेट एट्रीब्यूट है, जब भी अपडेट होगा पूरी बॉडी को फिर से अपडेट कर देगा वो, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे वो चीजें हो रही है। फिर डिलीट का फंक्शन सिंपल दे दिया, वहां स्वाइप एक्शंस में था, वहां पे आप करते थे, वही चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है। उस तरीके से इसमें और भी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट अभी के लिए हम उतना बेसिक पे बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। फिर यहाँ पे एक आईडी का कॉन्सेप्ट है। आईडी बेसिकली अभी कैसा होता है, जब भी आप लिस्ट बनाते हो ना, तो एप्पल रिकमेंड अगेन, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, एप्पल रिकमेंड कि आपका आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए। मतलब आपको याद होगा हम लोग सेल्फ और रो में एक यूनिक आइडेंटिफायर होता था काइंड ऑफ, या डीक्यू करते थे, ठीक है। तो वहां पे कंटेक्स्ट थोड़ा अलग है, यहाँ पे एक ऐसा कंटेक्स्ट है कि आप हर किसी आइटम को, जो लिस्ट के अंदर जो आइटम है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको। नहीं करोगे तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशन है, कॉन्सिक्वेंसेस है, यू नीड टू फेस दैट थिंग, उस पर हम आगे आएंगे। पर अभी के लिए समझो कि ये जरूरी है टू आइडेंटिफाई एवरी आइटम इन द लिस्ट यूनिकली विद सम आइडेंटिफायर, ठीक है, विद सम यूनिक आईडी। बेसिकली आइडेंटिफायर नथिंग बट एक यूनिक आइडेंटिफायर है, एक यूनिक आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक्चुअली डेटा है स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग एरे है ये, राइट, आइटम्स। तो इसके लिए जब लिस्ट में जब मैं पास कर रहा हूँ तो डॉट सेल्फ करके पास कर दिया, और ये अज्यूम किया है कि सबकी वैल्यू अलग अलग होंगी, दैट इज द अजम्पशन, ठीक है। यही चीज आप कस्टम में और बाकियों में भी करते हो, उस पर भी हम आएंगे कैसे करते हैं। तो यस ऋषि। ये मुझे ये पूछना था, अगर वो अभी यहाँ पे एप्पल बनाना और ये तीन थे ना, अगर दो सेम है तो मतलब एप्पल एप्पल, तो फिर उस पर आएंगे उस पर आ रहा हूँ जी, ठीक है। तो अभी के लिए हाँ, पॉइंट सबसे पहला ये कि यूनिकली आइडेंटिफाई करना जरूरी, नहीं करते हो तो उसके क्या माइनस पॉइंट है उस पर हम आने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट या तो एक्सकोड में ही लेके चलता हूँ और फिर ये क्वेश्चन पे हम आएंगे, जो अभी ये जो क्वेश्चन है हमारा, कि अगर यूनिक नहीं होगा या ये आप पास नहीं करोगे, तो पास तो वैसे करना पड़ता है काइंड ऑफ, बट अगर यूनिक नहीं होगा तो क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो चलो पहले एक्सकोड में चलते हैं, ये कोड मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, उसी कोड को, इसका जो कोड है ये यहाँ पर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक फ्रूट एरे लिए, मैं पहले आपको प्रोजेक्ट रन करके दिखा देता हूँ सो डैट आप रिलेट ज्यादा करोगे, और मैं फ्रूट लिस्ट को कंटेंट व्यू पे मैप कर देता हूँ, इससे हमारा ये वाला कोड चले और बाकी के जो अभी दो किए थे वो ना चले, ये वाला चलना चाहिए, राइट। तो मैं एक बार रीलॉन्च कर देता हूँ, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना है, कंटेंट इज नथिंग बट, जैसे आपको याद होगा यूआई किट में आपकी एक की कंट्रोलर, आपका रूट विजिबल कंट्रोलर याद है, वो आप करते थे ऐप डेलीगेट के थ्रू, या एक दो फंक्शन है वहां से वो मैप्ड होता है, या फिर आपका स्टोरी बोर्ड में मेन स्टोरी बोर्ड मैप्ड होता है जो फर्स्ट लॉन्च होगा बेसिकली, या प्रोग्रामेटिकली यूआई कर रहे हो तो वो ऐप डेलीगेट के थ्रू उस फंक्शन में मैप्ड होता है, विंडो से आप मैप करते हो, यूआई विंडो से मैं कह रहा हूँ, वही चीज स्विफ्ट यूआई में यहाँ से मैप्ड होती है, नथिंग बट ये आपका ट्रिगर चीज है, मतलब कि ऐप यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऐसा समझो आप, यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे मेंशन होगा काइंड ऑफ वो फर्स्ट स्क्रीन होगी, ठीक है, ऐसा समझना। तो अभी हाँ हमारा ऐप चल गया, हम ऐप पे आते हैं। तो देखो अभी के लिए 3 फ्रूट है, बैकग्राउंड में उनकी इमेज भी दिख रही है, क्यों दिख रही है, ये कोई जादू से नहीं आ रही, एसेट्स में मैंने डाल के रखा है, राइट। ये एसेट्स में आपको दिखा दूं अगेन, फिर ये गूगल मीट को आज क्या भाव आ रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है। तो हाँ पॉइंट ये था कि एक्सपोर्ट पे आ जाता है कि मैंने एसेट्स डाल के रखे हैं, ठीक है। और ये तो अच्छा मेरे को दिख गया, वरना मेरे को दिखता ही नहीं कि स्क्रीन 3 चला जाए तो कोई बताना, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट की स्क्रीन में तो मुझे पीछे क्या चल रहा दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी आप कोड में देखोगे तो बेसिकली नथिंग बट मैंने ये जो इमेज मैप करी है ये यहाँ से करी हुई है, ये देखो आप इमेज का जो कोड है, दिस इज नथिंग बट यहाँ पे ये फ्रूट लोअर केस करके रखा हुआ है मैंने, ये लिस्ट है देखो अपनी। अब लिस्ट के अंदर जैसे मैंने बोला, लिस्ट के अंदर जो भी कोड है इज नथिंग बट ये फॉर ईच लूप लगा है, और इसके अंदर ये जो कोड है ये बेसिकली दिस कोड, दिस इज नथिंग बट योर आपका ये सेल है पूरा आपका, राइट। और इसमें मैंने नेविगेशन भी लगाया, उस पर हम बाद में आएंगे, अभी के लिए इसको इग्नोर करो। तो ये आपका सेल हो गया, उस सेल में क्या कर रहा हूँ मैं, टेक्स्ट हो रहा है, उसको मैंने फॉन्ट वॉन्ट दिया थोड़ा सा, और एक आइकन लिया है मैंने, उसमें एक इमेज आइकन है आपका, और एक फ्रेम रेम बर्थ हाइट दे दी, वैसे इतना कोई रिलेवेंट नहीं है अभी, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट कलर अभी आपको जस्ट दिखाने के लिए कि ओके व्हाइट है, इस व्हाइट को मैं कलर अगर चेंज करके येलो कर दूं, ठीक है, तो येलो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, राइट, जो कि हमारा फ्रूट का नाम जो आ रहा है जिस लेबल को, उसको मैंने कलर चेंज किया है, देखो अभी येलो हो गया।
पर येलो ऑब्वियसली रीडेबल नहीं, तो हम अगेन वाइट कर देंगे। पर पॉइंट है कि ये चीजें यहाँ से मैप्ड है, ये आपको समझ आना चाहिए, राइट। फॉन्ट भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, अभी के लिए लास्ट टाइटल किया हुआ था, इसको हम लोग थोड़ा सा ना कुछ और ले लो, बोली हेडलाइन ले लो, एनीथिंग, ठीक है, डजेंट मैटर। अब हम इस पे आ रहे हैं, पॉइंट ये है हमारा कि स्टेट वाला चीज, और इसमें अगेन हम अभी ऐड वैड करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होगा। ये कुछ ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है, पहले वाले सही था। तो अभी कैसा सीन है, ये देखो ऑन डिलीट भी हम देखेंगे अभी, और अभी मेन चीज है यहाँ पे एक डिटेल व्यू भी, उस पर भी मैं आऊंगा, पर पहले हम लोग इस एरे की बात करेंगे, ठीक है। ये एक एरे है हमारा, और इसी में चीजें अपेंड हो रही है, और इसी में चीजें ये देखो अपेंड हो रही है, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको, ये ऐड बटन पे हो रही है। अब ये ऐड बटन अभी हम रन करने वाले हैं, आपको ऊपर एक टेक्स्ट फील्ड दिख रहा होगा, और वहां पे एक बटन, उसके क्लिक पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है। दिस इज नथिंग बट आपका, आप ऐसा समझो यूआई किट में जो आईबी आउटलेट एक्शन आपका था, आईबी एक्शन, वो ये है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, भली जो यूआई किट वाले लोग हैं वो आपको समझ पाएंगे, ये आईबी एक्शन है बेसिकली आपका, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर आईबी एक्शन, ठीक है। आईबी एक्शन कह लो, या फिर आप बटन के वो जो टचअप इनसाइड फंक्शन रखते हो ना, टचअप इनसाइड वाला चीज, वो है ये, ठीक है। जब भी आप बटन पे टैप करोगे बेसिकली ये कॉल होगा, ठीक है। तो ये वो चीज हो रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉल बैक जाएगा उसको, ठीक है। उसके अलावा आपका लिस्ट पे जैसे मैंने बोला, ये दिस इज नथिंग बट योर, ये जो भी हो रहा है, ये जो कोड है आपका, दिस इज नथिंग बट योर सेल्फ और रो वाला कोड, सेल्फ और रो, ठीक है। सेल्फ और रो कह लो, या आइटम और रो कह लो, ठीक है। इस तरीके से टेबल व्यू के कंटेक्स्ट में कह रहा हूं मैं, या कलेक्शन व्यू के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो ये वो चीज है सेल्फ और रो, और आपका ये हटा देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा आपका हाइडर वाला वो भी चीज है जो कि अभी हम देखेंगे, बट हाँ जो अपने वहां पे देखा सेक्शन हेडर वगैरह में लगा सकता हूँ यहाँ पे, वो स्टैटिक में या इसमें भी डायनेमिक में भी लगा सकते हो। तो अभी चलो अपन अगेन प्रोजेक्ट पे चलते हैं, मैं एक बार फिर से बिल्ड करके आपको दिखाना चाहूंगा, तो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आ गया बैक टू। अब मान लो मैं कोई ऐसा फ्रूट ऐड करूंगा, अब मैंने कुछ फ्रूट्स की इमेज रखी है, जैसे मुझे पता है कि किसकी रखी है, मैंने वाटरमेलन की रखी है, तो मैं वाटरमेलन डाल रहा हूँ और मैं ऐड कर रहा हूँ। वाटरमेलन ऐड करूंगा, देखो वाटरमेलन ऐड हो गया, और डॉट डॉट हो गया वो, उस पर मैं क्योंकि फॉन्ट बढ़ा दिया है, वो अगेन वन लाइन है तो काइंड ऑफ डॉट डॉट जा रहा है। पर हाँ द पॉइंट इसकी लिस्ट ये डायनेमिकली अपडेट हो रही है, ठीक है। और उसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो मान लो मेरे को ऑरेंज पसंद नहीं है, सच में मैं ऑरेंज खाता भी नहीं होता, तो मैं ऑरेंज डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर दिया, देखो डायनेमिकली अपडेट हो गई। मैं बनाना भी डिलीट कर रहा हूँ, हो गया डिलीट। अब मैं बोल रहा हूँ यार नहीं मैंने गलती से कर दिया, मेरे को बनाना खाने की इच्छा हो तो रही है, तो ऐड कर देते हैं, ठीक है। बनाना आ गया। अब बाय डिफॉल्ट ऑर्डर ऑब्वियसली नीचे जा रहा है, इट्स लाइक वर्किंग एज अ आपका वो हो गया, राइट, क्यू की तरह वर्क कर रहा है काइंड ऑफ, राइट, या लिंक लिस्ट कह लो, ठीक है। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला चीज कह रहा हूँ, ठीक है। इसको आप चाहो तो एक कस्टम बिहेवियर रख सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपको जो लॉजिक रखना है, पर अभी के लिए बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ऐसा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने, अभी मेरे को पता है कि मेरे पास ऑरेंज भी है, तो मैंने ऑरेंज भी बास्केट में ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसकी क्लिक पे मैं डिटेल स्क्रीन पे भी जाऊंगा, ठीक है। एप्पल की देखो डिटेल, मैं इवन एप्पल को डिलीट करके मैं एप्पल को फिर से नीचे ले लेना, क्योंकि वो इमेज फिर दिख के ढंग से नहीं आ रहा था। एप्पल को नीचे ले लिया, तो किसी भी फ्रूट पे आप क्लिक करोगे तो बेसिकली डेटा पास हो रहा है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी हम कोड में जाएंगे कैसे हो रहा है, और आप देख पा रहे हो अभी मैंने बनाना पे क्लिक किया तो बनाना अंदर नाम आया, यहाँ भी नाम आ रहा है, और ये इसका आइकन भी आ रहा है, राइट। तो ऐसे ही आप किसी भी फ्रूट का देख सकते हो, ऑरेंज का ऑरेंज आ रहा है, वाटरमेलन का वाटरमेलन, एप्पल का एप्पल, राइट। ये कैसे हो रहा है, और प्लस ये जो एक्शंस दिए इसको अगेन हम एडिट एक्शंस कह रहे हैं। ये एक्शन डिलीट जो एक्शन आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है भाई, ये देखो, ये ऑन डिलीट यहाँ पे हमने दिया हुआ है, ठीक है। और टूल बार में हमने एडिट बटन भी दिया हुआ है। एडिट बटन इज नथिंग बट, और यहाँ पे जो एडिट बटन दिख रहा है आपका, ये एडिट क्लिक करोगे तो यहाँ से मैं डायरेक्टली डिलीट कर सकता हूँ मल्टीपल। स्क्रीन एक्चुअली एक्सकोड। ओके ओके, या थैंक यू। ये आज फिर से दिक्कत हो रही है, इसको पता नहीं क्या भाव आ गया आज। थैंक्स अकराफ, एक मिनट। अभी दिख रहा है? हाँ जी अभी देखो। हाँ, तो एडिट बटन आपका नथिंग बट, मैं फिर से इसको एक बार, ये जो एडिट बटन है आपका टूल बार होता है बेसिकली, इसमें आप और भी चीजें डाल सकते हो। अभी के लिए एडिट बटन डाला हुआ है, तो एडिट बटन इज नथिंग बट आपका ये एडिट बटन है। इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो डिलीट कर पा रहा हूँ, और फिर इसको अगेन मैं राइट कर देता हूँ तो ये वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। और उसको क्लिक करता हूँ तो ये एडिटेबल स्टेट में आ जाता है,
ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और बाकी ऑन डिलीट का फंक्शन यहाँ से कॉल हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये एक और चीज है यहाँ पे मेंशन नहीं, ठीक है, पर हाँ खुद से आप एक बार अगेन आपको भी कुछ चीज एक्सप्लोर करनी है। तो अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ डिलीट दिख रहा है, आपको इसमें और भी चीजें ऐड करनी है, जैसे स्वाइप एक्शन हम करते थे, दिस यू कैन टेक एज अ टास्क, ठीक है। तो मैं इवन लिख के दे दूंगा प्रॉपर, बट अभी के लिए आप नोट कर लेना एक बार। तो ठीक है, डिलीट पे आपका बेसिकली डिलीट हो रहा है, एडिट से आपका वो एडिट हो रहा है, और जब भी हम क्लिक कर रहे हैं तो डिटेल पे जाता है, जो कि नथिंग बट आपका डिड सेलेक्ट फॉर रो जो था हमारा, ठीक है, वो चीज है। डिड सेलेक्ट फॉर रो कहाँ से हो रहा है आपका, यहाँ से हो रहा है, ये जो चीज है नेविगेशन लिंक लगा हुआ है यहाँ पे। तो जब भी आप क्लिक कर रहे हो, एक्चुअली ये आपको इसका आप सिंपली सर्च करो फ्रूट डिटेल व्यू कहाँ से मैप्ड हुआ हुआ है, ये डिटेल स्क्रीन है आपका, और ये आपका कहाँ से मैप्ड हुआ हुआ है, यहाँ से मैप्ड हुआ हुआ है, राइट। तो यहाँ पे कैसे एक डेस्टिनेशन दिया हुआ है, तो जब भी आप किसी पे क्लिक कर रहे हो वो डेस्टिनेशन आपको बेसिकली नेविगेशन लिंक, इसको हम अगेन नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। बट हाँ अभी के लिए इतना समझो, यहाँ पे 2 से 3 तरीके हैं सॉफ्टवेयर में नेविगेट करने के। हम लोग वहां पे नेविगेशन स्टैक यूज करते थे यूआई किट में, यहाँ पे भी नेविगेशन स्टैक है जो कि बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है 16 में काइंड ऑफ, उसके पहले नेविगेशन लिंक था, इस तरह की चीजें हैं। तो अभी के लिए इतना समझो, नथिंग बट जैसे आप पुश कंट्रोलर करते थे, टेबल व्यू पे क्लिक करके पुश व्यू कंट्रोलर चाइल्ड कंट्रोलर आ जाता था आपका, राइट काइंड ऑफ, या नेक्स्ट स्क्रीन आ जाती थी, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। तो जब भी आप किसी पे क्लिक कर रहे हो तो नथिंग बट ये आपको नेविगेट कर रहा है, और ये आपको डिटेल व्यू पे लेके जा रहा है। डिटेल व्यू नथिंग बट आपकी नेक्स्ट स्क्रीन है ये, ठीक है, और ये आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जा रहा है। और नेक्स्ट स्क्रीन में क्या हो रहा है भाई, डिटेल व्यू जो है इसमें नथिंग बट आपका यहाँ पे क्या एक टेक्स्ट इमेज है, और वो जो आपको दिख रहा है ये सारा टेक्स्ट यहीं से आ रहा है, राइट। यू सिलेक्टेड एप्पल इट्स फुल, तो यहाँ से मैप्ड है, देखो वैल्यूज, यू सिलेक्टेड फ्रूट का नाम और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और फिर इसका इमेज भी मैंने अगेन फ्रूट के नाम से इमेज मैप किया हुआ है, क्योंकि एसेट्स के नाम मैंने जानबूझ के फ्रूट के नेम पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डेटा में पास कर रहा हूँ, और ये फ्रूट आपका स्टेट एट्रीब्यूट है, और बाइंडिंग एसेट मैंने अभी यहाँ लगाया नहीं, तो बाइंडिंग आपको दिखेगा नहीं इधर, पर हम लोग मेनली आपकी लिस्ट देखना चाह रहे थे, और आपका नेविगेशन हो रहा है, और आपका डिलीट एक्शन चल रहा है, और आपका एक नेविगेशन बार भी आ रहा है। वो नेविगेशन बार क्या है यहाँ पे, जैसे हम लोग यूआई किट में करते हैं, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये ऊपर माई फ्रूट्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और माई फ्रूट में, और जब भी मैं डिटेल स्क्रीन में जा रहा हूँ तो ऊपर वाटरमेलन फ्रूट का नाम भी आ रहा है एज अ टाइटल। ये अपना यहाँ से हो रहा है चीजें, नेविगेशन बार में देखो ये मेंशन है कि टाइटल होगा आपका फ्रूट का नाम, और ये इनलाइन मोड क्या होता है, अगर मैं इनलाइन मोड हटा दूं ना तो ये ऐसा हो जाएगा। इनलाइन मोड मैंने जानबूझ के लगाया, मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ। तो अगर आप इसको, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ बेसिकली, और मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो अभी देखना आप, अगर आप इनलाइन मोड नहीं देते हो तो फिर आपको पता होगा यूआई किट में भी ये चीज होता था, ऐसा टाइटल आएगा। अभी देखो इस तरीके से आएगा, स्क्रॉल करोगे तो ये अभी स्क्रॉल भी नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो ये इस तरीके से टाइटल आएगा बाय डिफॉल्ट। पर स्क्रॉल होता है तो वो ऊपर चला जाता है, बट अभी स्क्रॉल व्यू नहीं है तो इसलिए, ठीक है। तो इसको मुझे अगर ऐसा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट ही वो ऊपर ऐसा नेविगेशन कंट्रोलर में आना चाहिए, जैसा हम लोग हमारे यूआई किट में आता है, वैसा आपको चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं, इनलाइन मोड लगाते हैं यहाँ पे। इनलाइन इज नथिंग बट कि एक ही लाइन में मेरा कंट्रोलर, मेरा नेविगेशन बार काइंड ऑफ होना चाहिए, ठीक है, उस तरीके से। तो ये है, उसके अलावा मैं चाहूंगा आप लोग अगेन खुद से एक्सप्लोर करोगे। तो एक चीज और करनी है, नेविगेशन बार में यहाँ पे अभी सिर्फ एक एडिट दिख रहा है आपको, मैं इसको फिर से बिल्ड कर लेता हूँ। उसी में आप लोग लेफ्ट और राइट बार अपन आइटम ऐड करते थे, याद है आपको यूआई किट में, वही चीज आप सॉफ्टवेयर में कैसे करोगे, बहुत ईजी है। अभी के लिए ये एडिट दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ बटन डाल सकते हो, 2-4 बटन इधर ऐड कर दो, 2-4 इधर कर दो, और उसके क्लिक पे भी कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करो आप, ठीक है। तो वो आपको करना है काइंड ऑफ, बहुत ईजी है, नथिंग उसमें कुछ नहीं है ज्यादा। तो ये आप करो, ठीक है। उसके साथ लिस्ट के साथ खेलना है, स्टेट और बाइंडिंग के साथ खेलना है, और नेविगेशन का टॉपिक अब अगले उसमें लेते हैं, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, पर ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ तक समझा चीजें, लिस्ट इज नथिंग बट आपका सिंपल टेबल व्यू, और उसमें आपको क्या बोलते हैं, आपका जो सेल्फ और रो है वही वाली चीज हो रही है, और आपका नंबर ऑफ रो अलग से भेजना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो लिस्ट में जितने आइटम है उतने वो बना रहा है सिंपली, क्योंकि सारा चीज यहाँ पे डायनेमिकली बाइंडिंग लिंक और असिंक मतलब सिंक हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो अलग से बोलना नहीं पड़ रहा, यूआई किट में ऐसा नहीं होता था। यूआई किट में हमको अलग से बोलना पड़ता था भाई कि नंबर ऑफ रो में इतनी रो, मतलब बेसिकली एरे का काउंट पास करते थे वहां पे, पर वो करना पड़ता था बेसिकली, राइट। यहाँ पे नहीं करना,
दैट्स द मेन पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से एप्पल ने ये मेक श्योर किया है कि आप लोग अगेन कई चीजें आपको करनी नहीं पड़े, वो खुद समझ के अपना मैप कर ले इस तरीके से सॉफ्टवेयर में। इसलिए सॉफ्टवेयर इस कंटेक्स्ट में बेटर है एज कम्पेयर टू यूआई किट। अब उसके हम आएंगे कुछ प्लस माइनस दोनों जगह ऑब्वियसली, बट अभी के लिए पहला प्लस वाली चीजों पे फोकस करो। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है जो आज अभी देखा हम लोगों ने, लिस्ट और आपका फाइंडिंग। ठीक है, हाउ टू इंश्योर आई एम ज्वाइनिंग इन अ गुड कंपनी। हाँ प्रणीत, इस पे मैं आऊंगा, वेट। पर हाँ टॉपिक क्लियर है, कूल। तो आपको असाइनमेंट अगेन जो असाइनमेंट मिला हुआ है उस असाइनमेंट में ही कंटिन्यू करो, उसमें आप लिस्ट को एक्सप्लोर करो। ठीक है, उसमें ऑप्शन है लिस्ट वाला, आप बनाओगे। ठीक है, उसमें लिस्ट आ ही रही है, जॉब्स की लिस्ट आ रही है वहाँ पे जो अपना असाइनमेंट है। ठीक है, तो उसमें आप लिस्ट व्यू को एक्सप्लोर करो, स्टेट बाइंडिंग को करो, पास करो, नेविगेशन करो, नेविगेशन बार के साथ खेलो, इतनी चीजें करो। ठीक है, जो जो आज देखा है अपन ने। उसके अलावा एमवीवीएम अगेन खुद से ट्राई करो, हम एमवीवीएम यहाँ पे लेंगे, बट अगेन आई एक्सपेक्ट कि एमवीवीएम बेसिक एमवीवीएम सबको आता होगा, पर स्टिल कुछ लोगों को नहीं आता, हम यहाँ पे कवर करेंगे उस चीज को, बट आप खुद से जब तक ट्राई करो उस चीज को। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एक दो क्वेश्चन लेना चाहूंगा जो कि है ऑन द डीएसए पार्ट एंड ऑन इंटरव्यू टॉपिक वाला चीज, या फिर जो अभी रिसेंटली इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ स्ट्रगल हो रहा है, कुछ चैलेंजेस है। तो हाँ प्रणीत, मैं आपका क्वेश्चन लेना चाहूंगा। तो प्रणीत, हाउ टू एंश्योर आई एम ज्वाइनिंग इन अ गुड कंपनी। तो आपने मुझे एग्जांपल कंटेक्स्ट दिया था कि एक कंपनी है जो कि बहुत ज्यादा नोटिस पीरियड रख रही है और बहुत ज्यादा प्रोबेशन पीरियड भी रख रही है, जो कि काफी एक स्टैंडर्ड से ज्यादा है काफी, राइट। स्टैंडर्ड नॉर्मली 6 मंथ्स होता है, कई जगह 3 मंथ्स भी होता है, कई जगह 6 मंथ होता है, कभी कभी 1 मंथ भी होता है, बहुत रेयरली होता है वैसा वो। पर हाँ, पर अगर कोई कंपनी आपको 12 मंथ्स कह रही है या 9 मंथ्स कह रही है प्रोबेशन पीरियड ही, तो ये एक्चुअली तो अच्छी बात नहीं है, नॉट रिकमेंडेड। तो एक तो उनकी पॉलिसी से आप उनको जज कर सकते हैं, दूसरा आप अगेन प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, किस तरह के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, कल्चर कैसा है। नोटिस पीरियड नॉर्मली अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में कम होता है। ठीक है, सर्विस बेस्ड जो होती है उसमें भी, सर्विस बेस्ड में भी क्वालिटी है, कुछ बहुत अच्छी वाली, कुछ बहुत बेकार वाली भी है। तो जो बेकार वाली है उसमें 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड मिलेगा आपको। 3 मंथ्स क्यों डाल देते हैं लोग, क्योंकि आपका निकलना भी मुश्किल हो जाता है और उनको भी बैंडविड्थ मिल जाती है क्लाइंट से डील करने के लिए, तो वो अपने फायदे के लिए हम लोग का नुकसान कर देते हैं थोड़ा काइंड ऑफ। पर अगेन नॉट रिकमेंडेड कि आप 3 मंथ वाली नोटिस पीरियड कंपनी में जाओ, जितना हो सके 1 मंथ इज द बेस्ट एक्चुअली। वर्स्ट केस में 2 मंथ वाली देख सकते हो, पर 1 मंथ या उससे भी लेस वाली होती है, पर नॉर्मली 1 मंथ होता है, या तो उसको आप प्रेफर करो फॉर योर नोटिस पीरियड। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स नहीं है, पर कंपनी देख के समझ आ जाता है कि अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है भाई, टेक्निकली काम कैसा हो रहा है, लोग कैसे हैं वहाँ पे, ठीक है, कल्चर कैसा है। वो रिव्यू आपको ओवरऑल ग्लासडोर पे ही मिल जाएंगे, लोगों से बात कर सकते हो, लिंक्डइन पे जाके यू कैन रीच आउट टू द पीपल। एक्चुअली लोग सच बोलते हैं, तो आप जेन्युइनली लोगों से बात करो कि कंपनी में कल्चर कैसा है, ठीक है, ग्रोथ है क्या, लर्निंग है, अप्रेजल्स है, क्या सीन है, माहौल कैसा है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, दैट यू कैन चेक एक्चुअली, एंड देन यू कैन डिसाइड इट्स अ गुड कंपनी और अ बैड कंपनी। ठीक है, दैट्स द राइट थिंग टू, मतलब वो राइट फैक्टर्स है जज करने के लिए। आई होप प्रणीत आई आंसर योर क्वेश्चन। Yes, sir. या थैंक्स। उसके अलावा And मुझे डीएसए पे कंसर्न आए हैं, सॉरी। yes, तो I was about to ask a DSA actually. यस यस, डीएसए पे मैं आ रहा हूँ। डीएसए में कैसा है कि हम लोग भी प्रैक्टिस सेशंस थोड़े शुरू करेंगे, जो कि मैंने स्टार्टिंग से मेंशन किया था। डीएसए हम लोग पढ़ेंगे, मतलब पढ़ाएंगे नहीं यहाँ सेशंस में, क्योंकि हमारा होल बैच इज फोकस ऑन द आईओएस स्टफ ओनली। पर डीएसए में क्या प्रैक्टिस करने, कौन से क्वेश्चन करने, कहाँ से पढ़ सकते हैं, वो सारी चीजों पे हम लोग करने वाले चीजें। और प्रैक्टिस सेशन नथिंग बट हमको वीकली कुछ कुछ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, इसको हम टारगेट करेंगे। कि जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे एग्जांपल के लिए अभी कल से एक नया वीक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वी टारगेट कि कल से मंडे से लेके नेक्स्ट संडे के एंड तक, मतलब पूरा नया जो नेक्स्ट वीक है, उसमें वी विल गोइंग टू सॉल्व बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू एरे और लिंक लिस्ट, और इवन आपका बेसिक बबल सॉर्ट और बाइनरी सर्च, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, या इवन बेसिक स्टार पैटर्न, बेसिक स्टार पैटर्न। तो वो भी कई बार जैसा होता है कि जैसे हम लोग जब वी डोंट प्रैक्टिस एक्चुअली डीएसए, तो ये भी टफ जाता है एक्चुअली, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे या कभी पहले डीएसए नहीं किया, कोई डरने वाली बात नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट अवेलेबल जो है मार्केट में आई विल गिव यू, आप मैं आपको दूंगा, आप शेयर करूंगा, आप उसको देखिए, यू गो थ्रू इट, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन ट्राई द क्वेश्चंस। पहले खुद से ट्राई करो, नहीं बनता है तो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं नेट पे, हर प्रॉब्लम लैंग्वेज में क्वेश्चन सॉल्यूशंस अवेलेबल है। स्विफ्ट में भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी।
तो वो सॉल्यूशन देखो, खुद से समझो, देखो, फिर अगेन ट्राई करो। और स्विफ्ट क्या मतलब सिंटेक्स का ही खेल है। सी, जावा और पाइथन में तो आपको भरे पड़े हैं, सारा पूरा भरा पड़ा है डीएसए, राइट, सी प्लस प्लस। तो इवन आप मान लो इन केस जावा में भी अगर आप कोड देख लेते हो या सी में भी देख लेते हो, तो भी आप एक्चुअली लॉजिक तो समझ ही जाओगे, फिर आप स्विफ्ट में कोड कर सकते हो, राइट। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, ये चीज हम करने वाले डीएसए को लेके। और अगेन जो लोग डीएसए अभी एक्टिवली इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मेक श्योर करो कि आप पहले इजी लेवल के क्वेश्चंस बनाओ, और उसके पहले मेक श्योर करो कि आप बेसिक आर्किटेक्चर, सॉरी बेसिक डीएसए सीखो। मतलब कि बेसिक एरे स्ट्रिंग हो गया आपका, ठीक है, बेसिक लिंक लिस्ट कैसे काम करती है, बेसिक क्यू स्टैक, इतना आप देखो। फिर उसके बाद ट्री और ग्राफ पे आओ थोड़ा धीरे धीरे। और एल्गोरिथम वाइज भी आप बेसिक सर्च सॉर्टिंग हो गया, ठीक है, बेसिक इस तरीके से रिकर्शन हो गया, इतनी तो बेसिक चीजें आपको आइडिया होनी चाहिए। तो मैं उसका एक प्रॉपर, मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस इनिशियली वंस वी स्टार्टेड द बैच तब मैंने शेयर किए थे। मैं फिर से एक डॉग बना रहा हूँ डीएसए का, वो आपको मैं शेयर करूंगा। आप वहां से बेसिक क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट कर सकते हो प्रैक्टिस, और उसके सॉल्यूशंस भी देखो, समझो, फिर अगेन ट्राई करो। और कुछ एल्गोरिथम आर्टिकल्स वीडियोस होंगे, वो भी आप देख के समझ के फिर उसके क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है। तो धीरे धीरे डीएसए में लेवल अप होगा, बट अगेन मेक श्योर हफ्ते का कुछ घंटे आप डीएसए के लिए निकालो, जरूरी है। डीएसए इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे थ्योरेटिकली, इट्स नॉट लाइक कि आप लास्ट दिन थोड़ा सा ऐसा 2 पेज देख के चले जाओगे और डीएसए का राउंड क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो डीएसए में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आपको डेली करनी होगी काइंड ऑफ, या फिर अल्टरनेट डेज पे या वीकली काइंड ऑफ करनी ही पड़ेगी, तब जाके डीएसए में लेवल अप होगा, और तब जाके आपके डीएसए के राउंड आराम से निकल पाएंगे। और कोई भी अच्छी प्रोडक्ट बेस में जाना है तो डीएसए राउंड इज मस्ट। बस ये कि डिफिकल्टी लेवल, जैसे मैंने बताया था, जितना एक्सपीरियंस लेवल आपका बढ़ जाता है डीएसए का लेवल कम हो जाता है। तो डिफिकल्टी लेवल कम होगा एज कम्पेयर टू प्योर फ्रेशर्स डीएसए के लिए। तो इसलिए मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, मोस्टली यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग एक तो बैच में। बट अगेन बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट भी मत करो। बेसिक और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को टारगेट करना है, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को भी इग्नोर करना, वरना वो बहुत हैवी हो जाएगा, उतना मत जाओ। इजी लेवल पे ही पहले टारगेट करो, फिर धीरे धीरे मीडियम लेवल पे जाओ, और उससे ही आप 80-90% कंपनीज क्लियर कर लोगे, ठीक है। बहुत रेयर कंपनीज है जो सीनियर लोगों से भी हार्ड क्वेश्चंस पूछती है, तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है सच। तो आपका मोस्टली 80-20 प्रिंसिपल आपको पता होगा, 80% कंपनी आपकी उन्हीं टॉपिक्स और क्वेश्चंस पे कवर अप हो जाएंगी काइंड ऑफ, ठीक है, ऐसा। Cool. Anyone else? Any other question? Yes, Praveen. Yeah, hi Kushal. I'm Rahul. Actually, what is the system design round? Is there any Yeah, about idea of I need to talk. Actually, system design round is nothing but the example के लिए one famous question which I also got in one of the company in system design round, which is to design an analytics framework or analytics, yeah, you can say analytics framework in your app. ठीक है, तो you need to implement 3 analytics framework in your project, and you need to make sure that every kind of actions or every user behavior you are basically logging or you are basically capturing, ठीक है, in your analytics. तो इस तरह क्वेश्चंस you will find in system design round. इसमें और भी variations है. I will give you the list and some resources related to that, and eventually in our batch also we'll take these questions, but later on, not right now. But this is about like system design. So they actually check your skill, basically how you architect the code, how you design your, again, from your project structure से लेके आपका design pattern, dependency injection से लेके solid principle, everything they check you on that part. तो वही सारी चीजें ये evaluate करते हैं system design analysts. Okay. Okay. Okay, fine. Ankit shared. Yeah, that is for clean IaaS architecture. ये बंदा भी अच्छा है, इनके वीडियोस देख सकते हो. It's essential developer. Yeah, that is actually the एक और, related to the analytics architecture only, so that's why I shared that video. yes. One more, एक नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं शेयर करूंगा आपको, मैं ढूंढ के एक बार. वो उन्होंने भी प्रॉपर सिस्टम डिजाइन राउंड की एक प्लेलिस्ट बनाई है, 5-6 केस स्टडीज ली उन्होंने. उसमें एक उबर ईट्स का केस स्टडी है, एक आपका उसमें एनालिटिक्स का भी, आई थिंक ऐसे 4-5 है. सिस्टम डिजाइन राउंड के क्वेश्चन है, और प्रॉपरली उन्होंने हाउ टू अप्रोच से लेके एक पूरा 15-20 मिनट या आधे 1 घंटे का वीडियो है वो. तो वो मैं प्लेलिस्ट आपको रिकमेंड करूंगा. आई विल शेयर दैट लिंक, मेरे पास कहीं तो होगा वो स्ट्रीम में. आई विल शेयर. Yeah, my question is that
how to that what are like the question it will be asking for the system design? It will be overall technical or something else No, coding? system design is all about how you design your code, okay, or how Okay. design your. तो इसमें क्वेश्चन कुछ भी रैंडम भी आ सकता है. इट्स नॉट कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन सेट है वो ही आएगा. पर एग्जांपल के लिए एनालिटिक्स वाला, और ये कई हमने पूछती भी है इसलिए फेमस क्वेश्चन है. ठीक है, तो बेसिकली कुछ भी केस स्टडी या कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है, एंड इन दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे एक्चुअली इवैल्यूएट योर डिजाइन आर्किटेक्चर स्किल्स. बेसिकली कोड वाइज कह रहा हूं मैं, ओके. कोड को आप डिजाइन कैसे कर रहे हो, आर्किटेक्चर कौन सा डिजाइन पैटर्न यूज कर रहे हो, कितना उसको स्केलेबल और क्लीन कोड आप कर पा रहे हो, वो वहां पे चेक हो जाता है. ठीक है, दैट इज Okay. तो बेसिकली आपके फंडामेंटल्स, आपके बेसिक्स, बेसिक शुड बी क्लियर एंड स्ट्रांग in the context of solid principle, design patterns, architecture patterns and clean code kind of. ठीक है, तो Okay. वो सारी चीजें अगर आपकी अच्छी हैं तो ऑन द वे यू कैन इम्प्लीमेंट वॉट एवर जो क्वेश्चन आपको मिले, यू कैन राइट अवे ऑन द स्पॉट, यू कैन इम्प्लीमेंट एंड यू कैन क्लियर दैट राउंड. Okay, fine. Thank you. Ankush is the question, sir, where to get a resume builder link, the sample and the best one. ओके अंकुश, रिज्यूमे बिल्डर की काफी सारी वेबसाइट्स हैं वैसे, बट आई वुड रिकमेंड एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट टेम्पलेट है जो मैंने एक बार अपने इसमें आई थिंक शेयर भी किया था अपने सेशन में, बट मैं अगेन ग्रुप पे डाल दूंगा और उसको लेके आप अपना रिज्यूमे थोड़ा अपडेट कर लो. वो टेम्पलेट इज रिकमेंडेड काइंड ऑफ. उसी पे एक आर्टिकल है जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि हाउ गुड रिज्यूमे शुड बी लुक लाइक समथिंग, ऐसा टाइटल है, जो कि है ऑथर क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू की जो ऑथर है उनका वो आर्टिकल है. तो वो रिज्यूमे हर जगह चलता है, बहुत बेसिक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, उसमें कुछ भी फैंसी नहीं है, नथिंग फैंसी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लीन एक्सपीरियंस. एंड थोड़ा सा अगेन कंटेंट कम रखना होता है. रिज्यूमे जिनका 3, 4, 5 पेज का है, प्लीज 1 से 2 पेज में लेके आ जाना उसको, अगर आप लोग के हैं 3, 4, 5 पेज के, तो नॉट रिकमेंडेड एट ऑल. तो कुछ कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं वो आप ध्यान रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं. सर, स्टॉक बाय स्टाइल डिजाइन, दिस क्वेश्चन is also very popular. हाँ, feature flag, yes, yeah, yes रोहित, you are right. हाँ, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं. yeah. ठीक है, तो cool. Anything else? Otherwise we can wrap up. Next session mostly we'll conduct on Tuesday or Wednesday. I will let you know. In the meantime, please जितने टॉपिक्स अभी तक हुए हैं और जो भी अभी तक देखी है चीजें, try to complete your assignment. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे और उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सॉफ्टवेयर में. जो लोग सॉफ्टवेयर पहली बार कर रहे हैं या पहले ऐसे ज्यादा नहीं किया है, तो अभी हम लोग क्यों कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में कॉन्फिडेंस भी लाना है, इंटरव्यूज भी क्लियर करने हैं. अभी हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस पे तो मैं आया नहीं अभी तक, पर अभी पहले हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेसिक टॉपिक्स और बेसिक बनाने का ट्राई कर रहे हैं, फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे भी आएंगे और फिर उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस पे भी आएंगे हम लोग eventually in the coming sessions. Okay, cool. So yeah, thank you everyone for joining session on Sunday, and ये recording भी share कर दूंगा मैं reference के लिए, और मिलते हैं फिर अगले सेशन में. Cool. All the best. Take care. Thank you and happy weekend. Yeah. Thank you, Kushal. Thanks.